as there was a question for you from you that ma'am, if we connect the wavelengths, अगर हम लोग gamma ray के बारे में बात करें, alpha ray के बारे में बात करें, beta rays के बारे में बात करें, when I took an example of heat radiation, you itself asked कि ma'am gamma ray, alpha ray, beta ray या x-rays का behavior कैसा होगा. So not by taking gamma rays, alpha rays, beta rays, but what they did in general, they talked about the wavelength. What they did in spectral distribution of black body, they have connected or they have draw a graph of radiant power per unit area. You know what is radiant power per unit area, which is represented by R, correct? This is radiant power per unit area. इसको आप radiant power per unit area भी बोल सकते हो, because it simply means Q by AT, and you know Q by T is your power. So you can also write this radiant power as radiant power. You can say this as radiant power per unit area. Okay. So what they did, they went away for the radiant power per unit area. They connected the two things. They started making a graph of radiant power per unit area with wavelength. They start comparing these two by keeping the different temperatures. Now, the first explanation regarding spectral distribution of black body, before starting with the explanation of this graph, what they studied first, we will try to understand those things. Okay, पहले वो समझेंगे, फिर इस ग्राफ पे आते हैं. Now, the radiant energy per unit area, per unit time, that you know that R is given by Q by AT, that is, it is radiant energy per unit area per unit time. They tried to connect this radiant energy per unit area per unit time with the temperature. उन्होंने क्या किया, इस radiant energy per unit area per unit time को temperature के साथ connect करना start किया. And what they found, हमको ये बात तो पता है कि if the temperature is high and this temperature is related to kinetic energy, of course, that is KBT, correct? So if the temperature increases, the kinetic energy of each of the molecules increases. And if the kinetic energy of each of the molecules increases, means of course the frequency, the range of frequency when the temperature is high is long. तो जो frequencies का range निकलेगा is also increasing with the increase in temperature. Okay, if the frequency is increasing, of course the wavelength will start decreasing. जो wavelength होगा, since frequency and wavelengths are inversely proportional to each other, तो जब आपने temperature को बढ़ाया, temperature बढ़ाने की वजह से उसका kinetic energy बढ़ा, kinetic energy बढ़ने की वजह से उसका जो range of frequency था वो क्या हो गया, बढ़ गया. The number of frequencies, that is the range of frequency, increased for a particular particle. And if the range of frequency is increasing, the wavelength will start decreasing, of course. Now what they observe about the things that when I discussed about the temperature versus your wavelength, I already said that at 300 Kelvin, when you are at room temperature, of course at room temperature, sorry, at room temperature what happens? Your wavelength is very high, which you cannot see. So the first wavelength that you can see is of red color, that is at the temperature of 800 Kelvin. So when you increase the temperature, of course the wavelength starts decreasing. And when the wavelength starts decreasing, the frequency, the range of frequency at this particular temperature start increasing. Always keep it in mind when you say that it is an heat radiation or heat energy, it simply means that that particular energy consists of number of wavelengths together. ऐसा कुछ नहीं है कि एक fixed wavelength उसके अंदर होगा. There will be a number of wavelengths. There will be a collection of wavelengths together. But when when the temperature is very high, this collection increases because the range of frequency increases. And when the range of frequency increases, of course, the wavelength goes on decreasing. Okay. Now, if the temperature is high, range of frequency increases. And if range of frequency increases, your wavelength decreases. इसीलिए अगर आपको किसी भी heat energy को observe करना है, if you want to observe, then what happens? You need to increase the temperature such that your wavelength can come under the range of visible range from where you can see those things. Ask him what is the doubt. Temperature is indirectly proportional to wavelength, na? Temperature is indirectly proportional to wavelength. Means, yeah, of course, it is directly proportional to frequency, so it will be inversely proportional to wavelength. You can say this. वही.
but because of the temperature you are getting this wavelength. Keep it in mind. Because of the temperature, since your particles are vibrating, and when there is a vibration there is a frequency. So when temperature increases, your particles start vibrating with a fast speed, start vibrating. Okay, so when the speed, you know what is frequency, when it starts vibrating with a very small, means vibration, the number of vibration increases, of course your frequency increases. And when your frequency increases, of course your wavelength goes on decreasing. That is what is the part. So at high temperatures, the range of frequency is long and your wavelength is low. And at low temperatures, your range of frequency at low temperature, your range of frequencies are low and your wavelengths are high. Hope you can understand how it is connecting to each other. Hope you're understanding how you are connecting to each other. Okay, connecting these things to each other. So at low temperature, your frequency, the range of frequency is low. There is a low range of frequency. And the wavelength is high. Okay, so these are the two cases what they observe, that if there increases the temperature, the range of frequency of course starts increasing and the wavelength start decreasing. Whereas when the temperature is low, the range of frequency is low and wavelength is high for that particle, for that wave. Now this graph, okay, ask home. Ma'am, at higher temperature, then violet color will be easily visible, na? Exactly, that is what happened. Wait. I have already discussed about the things that the first one that you can see is your red color, and after that you can see the white color, which is combination of all the frequencies. And this white color can only be observed at very, very, very high temperature. Means it is collection of almost all the frequencies and wavelengths which are there in the visible range. For that, Clear? temperature should be very high. Yeah, the temperature should be very high. Okay. At normal temperatures, you cannot observe heat energy because at that time the wavelength is very low. The wavelength is very high, and these high wavelengths are not visible to us. You can only see those wavelengths which are in the visible range. That is, Okay. you know what is the range of the visible range. That is about 700 nanometer to 300 nanometer, of course. Are you clear with the things? So that is what is the part that you can see. The first one is the red color, which is approximately, you can observe at 800 Kelvin. At 800 Kelvin, you can see the first color of your heat energy, that is red. And after that, when you start increasing the temperature, the wavelength goes on decreasing, and you can see the other colors as well, other color as well. And that is only the reason your sun is white in color. आपका जो sun का actual color है, it is white because उसका temperature is very high. Yeah, in this we are going to discuss about the temperature dependency of wavelength and the radiant energy, whatever radiation is taking place. So let's go ahead. This is what two things they found, that if they increase the temperature, the frequency goes on increasing, the range of frequency goes on increasing, and your and your wavelength goes on decreasing. If you decrease the temperature, your range of frequency goes on decreasing and the wavelength goes on increasing. See, keep it in mind. इस चीज को याद किस तरीके से रख सकते हो, वो एक तरीका ध्यान से समझो. एक सिंपल सा फंडा है कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो क्या होता है, वो चीज काफी तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है. मींस उसका वाइब्रेशन बहुत फास्ट हो जाता है. वाइब्रेशन फास्ट हो रहा है मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड बढ़ रहा है. जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. और मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ऑफ कोर्स अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसका वेवलेंथ क्या होता जाएगा, उसका वेवलेंथ डिक्रीज होता जाएगा. ओके, वहीं पे जब चीजें ठंड पड़ने लगती है तो उनका वाइब्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज व्हाट हैपेंस विद द वाटर एज वेल. जब आप पानी को फ्रिज में रखते हो, नॉर्मली पानी क्या होता है, फ्लूइड है, वो आराम से मूव हो सकता है. पर जब आप उसका टेम्परेचर कम कर देते हो तो पानी क्या हो जाता है, एक साइड एक जगह पे आके थम जाता है. इट कन्वर्ट्स इट इनटू सॉलिड. ठीक है, तो वहां पे वाइब्रेशन एज कम्पेयर टू वाटर क्या हो जाता है, उसका लो हो जाता है. सो यू कैन कीप दिस टॉपिक्स इन माइंड कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाइब्रेशंस बढ़ेगा. वाइब्रेशंस एक सेकंड में बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगा. क्लियर? दिस इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन दे फाउंड. नाउ this spectral distribution of black body was first given by the scientists Lermer and Pringsem. The name of the scientist was Lermer and Pringsem. You don't need to remember. What they observed, what was the experiment, what was the conclusion of the experiment?
they tried to draw a graph of spectral distribution of course we are talking about the black body here, एकदम perfectly black body के बारे में discuss कर रहे हैं, we are not talking about ordinary substance here. Okay, so that's why it is known as spectral distribution of a black body. Okay, so what they tried to find with this graph, they tried to find the energy distribution of a black body as a function of wavelength. मतलब उन्होंने क्या किया, ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे करके देखा. मींस दे टुक एन एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम फॉर 500 नैनोमीटर का वेव, 1000 नैनोमीटर का वेव, 1500 नैनोमीटर का वेव, 2000 नैनोमीटर का वेव. सो व्हाट दे हैव डन, they have drawn a graph of a spectral distribution of radiant energy per unit area per unit time versus your wavelength. Okay, and what they did कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने क्या किया, उनका जो भी रेडिएटिव सोर्स था उसको इन्हीं पर्टिकुलर वेवलेंथ्स के लिए उसको उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा. एज यू कैन सी इन द ग्राफ, द फर्स्ट कर्व, दिस वन, this was at the temperature of, this was done at the temperature of 3000 Kelvin. सबसे पहले उन्होंने 3000 Kelvin पे अपने सोर्स को रखा, टेम्परेचर को, and they start observing the radiant power per unit area versus wavelength at a temperature of 3000 Kelvin. Okay, second graph उन्होंने देखा, it was for 4000 Kelvin. वापस से उन्होंने टेम्परेचर किया चेंज and they did the experiment for 4000 Kelvin. First he drawn the graph of radiant power per unit area versus wavelength for 3000 Kelvin. अब उन्होंने अपने सोर्स को किस पे रख दिया है, 4000 Kelvin पे, और वापस ग्राफ बनाया. देन उसके बाद अगेन उन्होंने क्या किया, इस टेम्परेचर बढ़ाया एंड दे टुक द टेम्परेचर एज 5000 Kelvin. अब अपने सोर्स का टेम्परेचर उन्होंने 5000 Kelvin किया और वापस से रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया का ग्राफ वर्सेस वेवलेंथ बनाया. ठीक है, then again they increased the temperature of a source and now the temperature become 5500 Kelvin. So for different temperatures उन्होंने क्या किया, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया को, दैट इज रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड को के वर्सेस में उन्होंने वेवलेंथ को सॉरी रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया by keeping their sources at different temperatures. First they kept their source at the temperature of 3000, then they kept the source at 4000 Kelvin, then they kept the source as 5000 Kelvin, and then they kept the source as 5500 Kelvin. These are the different temperatures at which they were keeping their radiative source. And what they observed, there was certain observation after this. Since this graph is a distribution of your radiant power per unit area versus wavelength, this is also known as spectral distribution of a power radiated by a body for different wavelengths. So this is also known as spectral distribution of a black body. Because this experiment was done, the source here was considered to be a perfect black body. ठीक है, पेरिस ब्लैक बॉडी या कैविटी रेडिएटर को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें कैविटी रेडिएटर को एक बार 3000 पे रखा गया और रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया गया. उसके बाद उसको 4000 केल्विन पे रखा गया, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया गया. इस तरीके से दे ड्रॉ द ग्राफ. आर यू क्लियर व्हाट वाज द कंक्लूजन? समझा ग्राफ में क्या किया उन्होंने? आर यू क्लियर व्हाट दे हैव डन? पेरिस एंड लमन ने किया क्या है, उन्होंने कैविटी रेडिएटर्स को अलग अलग टेम्परेचर पे रख के रेडिएंट पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया हुआ है. ओके, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. एंड नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, वो समझो. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो कि तुम खुद इस ग्राफ से देख सकते हो. पहला ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे ये जो एनर्जी निकल रही है ना, वो एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं है. मतलब एज यू कैन सी कि पहले जो है एनर्जी वो बढ़ती जा रही है वेवलेंथ के साथ, और अचानक से जो एनर्जी है डिक्रीज होने लग रही है. मतलब इट इज नॉट यूनिफॉर्म, एक परफेक्ट शेप नहीं मिल रहा है कि चलो बढ़ती जा रही है तो बढ़ती ही जाए, या कम होती जा रही है तो कम ही होती जाए. नहीं, इट वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट, व्हिच नॉट अदर पीपल वर एक्सपेक्टिंग. सबने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा रही हूँ तो एक पर्टिकुलर ग्राफ मुझे मिलना चाहिए था, बट ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन हमको इस ग्राफ से मिला नहीं. What they found that कि अगर मैं किसी भी एक टेम्परेचर पे, प्लीज ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनो,
किसी भी एक टेम्परेचर पे अगर मैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखूं तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि मेरा जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है किसी भी टेम्परेचर के लिए। स्टार्टिंग में इट इज इंक्रीजिंग एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो किसी को इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि व्हाई इन स्टार्टिंग इट इज इंक्रीजिंग and why after that it started decreasing. Means there was no uniform explanation about the emission of the energy. Okay, this was the first. Now the second what they observe, that even you can see that in starting that emitted power is increasing with the wavelength, and after that even if your wavelength is increasing, your emission power start decreasing. ठीक है, तो फर्स्ट ये था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट परफेक्ट, जैसा एमिशन एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा नहीं हुआ, स्टार्टिंग में बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दूसरा ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये एमिटेड पावर है वो वेवलेंथ के साथ, स्टार्टिंग में वेवलेंथ के साथ तो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, बट बाद में देखा गया कि वेवलेंथ भले बढ़ता जा रहा है बट ये जो एमिशन, ये जो रेडिएंट पावर है वो क्या होता जा रहा है, ये जो एमिसिव पावर है ये क्या होता जा रहा है, ये कम होना स्टार्ट हो गया। ओके, the third what they observe is there is one point which is called as lambda maximum. What is this lambda maximum? This is that lambda, this is that wavelength at which at a given particular temperature you get the maximum value of radiant power. एक ऐसा wavelength मिल रहा है जिसपे आपका radiant power क्या है, maximum है। This is what is called as lambda maximum. Okay, यहाँ पर lambda maximum is this point, यहाँ पर lambda maximum is this point. I think it is between 5000 to 1000. Okay, here the lambda maximum is this point, here lambda maximum is this point, and this part is the lambda maximum over here. So what they are observing कि एक ऐसा wavelength है जिसके लिए क्या हो रहा है, जो radiant power है वो सबसे ज्यादा maximum मिल रहा है। Again I am repeating the three observations. First observation, जो energy emission है वो uniform नहीं है, ये observe किया गया for the particular wavelength. दूसरा ये observe किया गया कि जो आपका रेडिएंट पावर है वो स्टार्टिंग में वेवलेंथ के साथ बढ़ रहा है और अचानक से एक पॉइंट आने के बाद वो वेवलेंथ भले बढ़ता जाए वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एक ऐसा पॉइंट है हर टेम्परेचर पे जिस पॉइंट पे, जिस वेवलेंथ पे यू आर गेटिंग द मैक्सिमम रेडिएंट पावर, ओके, व्हिच इज दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसके लिए आपको मैक्सिमम रेडिएंट पावर मिलता है, दैट एट अ गिवन टेम्परेचर। ऑफ कोर्स 3000 केल्विन के लिए अलग लैम्डा मैक्स है, 4000 के लिए अलग है, 5000 के लिए अलग है, 5500 के लिए अलग है। तो जिस भी वेवलेंथ पे हमको मैक्सिमम रेडिएंट पावर मिल रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लैम्डा मैक्सिमम। ओके, सो दिस वाज द थ्री ऑब्जर्वेशंस। द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट अगर आप इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकालते हो, ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट मच इजी, अगर आप इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकालते हो तो इसके अंदर का एरिया आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो अंदर का ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ के अंदर का एरिया है, दिस पार्ट, इट गिव्स यू, इफ यू कैलकुलेट द एरिया बाय एनी ऑफ द मेथड, इट गिव्स यू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये अंदर का जो ग्राफ है, ग्राफ का एरिया, इट सिंपली गिव्स यू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, एज यू कैन सी दैट 3000 केल्विन पे द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज लो, एट 4000 थोड़ा बना, एट 5000 और बढ़ा, एट 5500 और बढ़ा। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आर यू क्लियर विद द थिंग्स? श्योर। सो दिस वाज द थ्री ऑब्जर्वेशंस। व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन अगेन? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्म, हमको एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं मिली, ना तो पूरी बढ़ती हुई मिली। वर्सेस वेवलेंथ की बात कर रही हूँ, नॉट एट द टेम्परेचर्स। वर्सेस वेवलेंथ पे जब हमने देखा तो स्टार्टिंग में जो पावर है वो बढ़ता हुआ दिखा, बाद में कम होता हुआ दिखा, तो हमको एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि या तो पूरी तरीके से बढ़ना चाहिए था या तो पूरी तरीके से कम होना चाहिए था। ये बढ़ने और कम होने का एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाए। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज अगेन द सेम, दैट व्हेन आई कैलकुलेट, इफ फर्स्ट आई वाज टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, नाउ आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ पावर। व्हेन आई लुक एट द रेडिएंट पावर, what I observed that with the increase in the wavelength, in starting it was increasing, but after some point it started decreasing and there was no explanation behind it. The third observation what they observed is that there is a particular point which is called as lambda maximum, at which point you get the energy radiated. Sorry, please mute yourself. जल्दी फॉर्मेलिटीज, जिनके पैसे गए थे पुलिस, इसका मतलब Sumit,
mute yourself. Hello. Hello. Hello, miss. Sumit, please mute yourself, I said. हाँ अमन पूछो. हेलो हाँ अमन बोलो. You're मिस, मैं audible. पूछूं? हाँ पूछो पूछो, ऑफ कोर्स पूछो. मिस, वो आपने बोला था जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा ग्राफ के हाँ हिसाब से. हाँ मिस, तो फिर ऐसे जब हाई टेम्परेचर तो ऐसे देखा जाए तो स्टार्स में रहते हैं, तो फिर हाँ ब्लू कलर का स्टार इसके लिए वजह से होता है क्या? हाँ ऑफ कोर्स. जो उनके कलर्स होते हैं ना वो उनके वेवलेंथ्स की वजह से होता है. दैट इज ट्रू. That is ओके true. मिस. The colors of the star are high because of its temperature. Are different as because of its temperature, of course. Okay, fine. So first observation was related to energy. Energy was not uniform. Second observation was related to radiated power, which they observed that in starting it is increasing and then it is decreasing. Again, there was no explanation. The third observation was there is a particular wavelength which is lambda maximum at which you are getting the maximum radiant power. Okay. After which, of course, your graph started declining. Okay. Next, the next part that they observe that area under the graph, if you calculate the area under the graph at a particular temperature, then you will find the energy emitted per unit area per unit time. Okay, for a particular wavelength, of course, particular range of wavelength. Next observation was कि अगर तुम ध्यान से देखो, you can see the graph. अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला लैम्बडा मैक्सिमम इज हियर, दूसरा लैम्बडा मैक्सिमम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ है, तीसरा लैम्बडा मैक्सिमम और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, और चौथा लैम्बडा मैक्सिमम और थोड़ा साइड शिफ्ट हुआ है. मींस ये ऑब्जर्वेशन मिला कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपका जो लैम्बडा मैक्सिमम है, जो लैम्बडा की वैल्यू है, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती जाती है. मतलब लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कम कम होते जाती है. अर्लियर अगर कंसीडर करो, यहाँ पर ऑब्जर्व करो, अगर एट दिस पॉइंट योर लैम्बडा मैक्सिमम लेट्स टेक इट इज 700. ओके, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गया हुआ है. ठीक है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये परफेक्टली 700 नहीं होगा यहाँ इस दूसरे टेम्परेचर के लिए. यहाँ पर जो लैम्बडा मैक्सिमम होगा वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 600 पे आएगा. थोड़ा सा और ऊपर वाले को ऑब्जर्व करो तो और लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, तो ये हो सकता है कि इट इज बिटवीन 600 to 500. और जो लास्ट वन देखो 5500 केल्विन का, उसका लैम्बडा मैक्सिमम और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है. मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आपका जो लैम्बडा मैक्सिमम है, आपका जो लैम्बडा मैक्सिमम है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा. आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस वाज द ऑब्जर्वेशन एंड दिस वाज द मेन ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, आपके लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कम कम होती जाती है एंड इट स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ये अपने आप को जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाकर उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसी पर्टिकुलर रेंज में, what you observe that for different temperatures, when you start increasing the temperature, the graph, the lambda maximum for each of the temperature starts shifting towards left when you increase the temperature. Okay, this was the main observation done in this graph. Okay, now next, of course, as I said कि अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालो, यहाँ पर जो एनर्जी एमिटेड है वो जो भी होगी, यहाँ पर 4000 के लिए of course the energy emitted will be more. At 5000 energy emitted will be more. At 5500 energy emitted will be more. Of course, as we increase the temperature, the energy emitted per unit area per unit time goes on increasing. Energy start increasing because energy is related to temperature. When you increase the temperature, the energy of the substance also increases. The emission of energy of a substance increases. So next observation is, now this much was the observation done by all those people. There were total 6 observations which I am repeating. First one was related to energy. They found that energy was not uniform for a particular fixed temperature. एक fixed temperature में ना उनको energy बढ़ती हुई मिली, ना energy कम होती हुई मिली. वही चीज जब उन्होंने power के terms में भी देखा, उन्होंने ये observe किया कि radiant power starting में wavelength के साथ बढ़ रहा था, बाद में वो decrease होना start हो गया. तीसरा observation उन्होंने ये किया कि what was the third observation? Third observation उन्होंने ये किया कि एक ऐसा लैम्बडा है जिस लैम्बडा के लिए यू गेट द मैक्सिमम रेडिएंट पावर, उस पे आपकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, जिसको हमने लैम्बडा मैक्सिमम बोला. चौथा ऑब्जर्वेशन ये था कि एरिया अंडर द ग्राफ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, समझो आपने 3000 केल्विन के लिए एरिया निकाला, तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम.
नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाज कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो आपका लैम्डा मैक्सिमम जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होती जा रही है. दिस इज व्हाट शोड दैट योर टेम्परेचर एंड लैम्डा आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा कम होता जाएगा. एंड द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज. ऑफ कोर्स आस्क होम. मैम लाइक अभी समझो 3000 केल्विन पे लैम्डा इतना था, समझो कितना 700 था, ओके. हाँ. अब 4000 केल्विन पे 600 हो गया, तो 5000 केल्विन पे भी 500 रहेगा, मतलब डिफरेंस नहीं ऐसा इक्वल कुछ रहेगा नहीं क्या? है. दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. ऐसा कुछ नहीं है. बट ऐसा ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है. डिफरेंस. डिफरेंस सेम होगा ऐसा नहीं है. ओके ओके. या ऐसा कुछ कंक्लूजन भी नहीं निकाला गया. अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. अब जब इस ग्राफ को ये जो लमर और प्रिंसिप ने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए लाइक इतने सारे ऑब्जर्वेशंस मिले तो लोगों ने ट्राई किया इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए. द टू पीपल हु ट्राइड वाज द फर्स्ट टू पीपल हु ट्राइड वाज रेलाई एंड जीन्स. दिस टू आर द साइंटिस्ट आर द फिजिसिस्ट. यू नीड टू कीप इट इन माइंड. रेलाई एंड जीन्स ने क्या किया, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बट जब वो एक्सप्लेन करने गए तो वो सिर्फ ग्राफ का आधा पार्ट ही एक्सप्लेन कर पाए. मतलब दे ओनली डिस्कस्ड अबाउट द लॉन्ग वेवलेंथ. उन्होंने सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ, उनकी जो भी थियोरी उन्होंने रिलीज की, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट थियोरी बिकॉज इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. तो रेलाई और जीन्स ने जब इनकी थियोरीज डिस्कस की तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के लॉन्ग वेवलेंथ के बारे में ही डिस्कस कर पाए. उनका थियोरी शॉर्ट वेवलेंथ को एप्लीकेबल नहीं हुआ. ओके. एंड द सेकेंड पर्सन जिसने रेलाई और जीन्स से अलग होकर एक्सपेरिमेंट किया और वो सिर्फ इस पार्ट को एक्सप्लेन कर पाया, मतलब सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पाया. तो रेलाई और जीन्स सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पाए और वेन करके जो साइंटिस्ट था, वेन करके विच यू आर गोइंग टू स्टडी फर्दर आल्सो, वेन साइंटिस्ट सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ को डिस्कस कर पाया. ओके. सो कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं था जो शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ दोनों को एक साथ एक जनरल इक्वेशन देके एक्सप्लेन कर पाए. ओके. सो दिस वाज इन कॉन्ट्राडिक्शन फॉर दिस प्रॉब्लम कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉन्ग वेवलेंथ को एक्सप्लेन किया तो लॉन्ग वेवलेंथ का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा था. कुछ ऐसे थे जिन्होंने शॉर्ट वेवलेंथ को एक्सप्लेन किया बट वो लॉन्ग वेवलेंथ को उनकी थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ओके. सो द पर्सन who explained the long wavelength were Rayleigh and Jeans, and the person who explained the short wavelength was Wayne. Now इन दोनों की थियोरीज को देख के, Rayleigh, Jeans and Wayne की थियोरीज को देख के, the person who explained the whole graph properly was Planck. The person who explained the whole theory properly was Planck. इसके बारे में तुमने शायद काफी बार सुना होगा. प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक करके h से रिप्रेजेंट किया जाता है. This h is known as Planck constant. So Planck was the one who explained the whole spectral distribution in a proper way. Rayleigh Jeans short long wavelengths, Wayne short wavelength, but Planck was the one जिन्होंने इन दोनों की थियोरीज को लेकर, Rayleigh Jeans और Wayne की थियोरी लेकर ओवरऑल ग्राफ को एक ही जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे वो थियोरी लॉन्ग वेवलेंथ को भी एप्लीकेबल हो गई और शॉर्ट वेवलेंथ को भी एप्लीकेबल हो गई. और सारा बिहेवियर समझ में आ गया कि ये पूरा जो आपका हीट रेडिएशन है वो अलग अलग वेवलेंथ्स पे ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है कि स्टार्टिंग में इट इज इंक्रीजिंग एंड देन इट इज डिक्रीजिंग. वो सारी चीजें द पर्सन नोन एज प्लैंक उसने सब चीजें एक्सप्लेन की. एंड प्लैंक वाज द वन जिसने मॉडर्न फिजिक्स को एक नया रूट दिया, एक नया एक्सप्लेनेशन दिया. प्लैंक की थियोरी को ही लेकर आइंस्टाइन अपनी चीजों में आगे की तरफ बढ़े. आइंस्टाइन टुक एन हेल्प ऑफ प्लैंक और प्लैंक ने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया कि पैरी ने जो स्टेटमेंट दिया ना कि कोई भी एक पार्टिकल है जो कंटिन्यूसली कोई एनर्जी एमिट करता है और ऑब्जॉर्ब करता है, प्लैंक ने बोला कि क्वांटम लेवल पे, मतलब एटम्स के लेवल पे, इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड. आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है. आपके एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक आएगा कि प्लैंक ने पूरे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया. बट प्लैंक का काम क्या था वो बता देती हूँ इन शॉर्ट. प्लैंक ने क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम लेवल पे जाके क्या एक्सप्लेन किया कि ये जो स्टेटमेंट पास किया गया ना कि सारा पार्टिकल्स हमेशा एनर्जी एमिट करता है, हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. कोई भी एटम कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं करता, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. कोई भी पार्टिकल तभी एनर्जी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो जंप करता है. यू नो दैट कि एटम्स के आजू बाजू देयर आर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, करेक्ट. तो जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करता है
तभी वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है। हर वक्त कोई भी चीज, कोई भी एटम एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्लैंक एज वेल। और इसी सारे एक्सप्लेनेशंस को लेकर प्लैंक ने एक और एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो छोटे छोटे एटम्स है ना, ये पॉकेट जैसे हैं, और ये पॉकेट्स में क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स है, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। सो प्लैंक सेड दैट दिस एनर्जी इज अ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस, क्वांटाइज का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट में स्टोर करना। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्लैंक दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, और कोई भी एटम तभी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है व्हेन इट गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कूदेगा तो ही वो एनर्जी को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आस्क होम। मैम अभी Ask आपने लाइक किरचॉफ में शायद पढ़ा था कि वो टी का एग्जांपल लिया था ना, चाय के कप का, कंटिन्यूस होता हाँ, रहता है। तो अभी इधर प्लैंक बोल रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है। टी के एग्जाम्पल में हमने अपने टी और कप ऑफ टी को गर्म रखा था, मतलब वहां हाँ पर हमारे एटम्स एक्साइटेड थे। जब कोई भी चीज एक्साइटेड होती है तो वो क्या करती है, वो जंप करती है। और हाँ। जब वो जंप करती है तो प्लैंक ने भी वही बोला कि जब कोई चीज जंप करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ही वो एनर्जी को रिलीज करती है। एंड बट नाउ जब यू आर कमिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ओके समझा? ओके हाँ, बट मैम जब टी का कप और सराउंडिंग 2020 हो गए उनका, तो भी हाँ, लाइक फिर भी तो हो रहा था ना कि तो प्लैंक ने बोला कि एटॉमिक लेवल पे देयर इज नो एमिशन ऑफ एनर्जी, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और यही सारी थियरी को लेकर आगे बढ़े। तो वो जो पीछे की थियरीज थी, इट वाज द बेसिक्स। अब ये ये रियल एटॉमिक लेवल पे एक्सप्लेनेशन बात है। है। या अब ये एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता, ठीक है, तब तक वो इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। यही चीज आपको बोर एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ने के लिए मिलेगी, तो फिर विच यू विल स्टडी फर्दर। वो जो पढ़ा वो रॉन्ग था कि लाइक फिर रेट उनका सिर्फ इक्वल हो जाता है। हाँ, तो स्टार्टिंग में देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स। स्टार्टिंग में जो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उन्होंने उस बेसिस पे थियरी बना दी। अब यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुआ है, तो अब उन्होंने एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया और ऑब्जर्वेशन ओके, स्टार्ट किया। तो सो फिर नाउ अब द थियरीज विल गेट मॉडिफाइड। हाँ, अब ये कंफर्म है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तभी ये सब रेट का डिफरेंस या होता है, किसी एक, अदरवाइज हाँ रेट डिफरेंस क्वांटम, एंड ऑल कुछ नहीं है। हाँ, जब ओके तक ओके। क्वांटम लेवल पे, जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे नहीं जाते, हाँ तब तक देयर इज नो एमिशन और नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। दिस इज द ओके, रियल फैक्ट मींस प्लैंक वाज according अ to ग्रेटर quantum साइंटिस्ट देन mechanics. आइंस्टाइन। That is your expectation and explanation. I cannot comment. Okay, we'll go ahead ओके with the next topic. Are you clear with spectral distribution and its observations? समझा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन में क्या क्या था? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन में स्पेक्ट्रल रेडिएटेड पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया गया। आपके परफेक्टली ब्लैक, दिस इज एप्लीकेबल फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखा गया ब्लैक बॉडी को, और रेडिएटेड पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया गया। नेक्स्ट उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व किए जिसको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जब उन्होंने रेडिएटेड पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बनाया तो उनको कुछ 5 से 6 टोटल ऑब्जर्वेशंस देखने के लिए मिले, जिसमें से रेलाई और जिन सिर्फ हायर वेवलेंथ वालों का एक्सप्लेन कर पाए और वेन सिर्फ स्मॉलर वेवलेंथ वालों का एक्सप्लेन कर पाया। बट द प्लैंक वाज द वन जिसने एक जनरल फॉर्मूला से ओवरऑल स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया बाय यूजिंग द रेलाई एंड वेन्स का थियरी। ओके, next topic is Wien's displacement law. This is just a law to understand, nothing else. Wien's displacement law. आज सजेस्ट करूंगी कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्पॉट पढ़ लेना, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे। Wien's displacement law। और एक और बात प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, जब अगर तुमको ये आता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने ग्राफ, एक बात याद रखना कि ये जो पीक लेवल है ना, जब तुम ग्राफ में बनाओगे तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये दिखा था शिफ्ट होता हुआ। अगर आपने एक के ऊपर एक बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी वो एक के ऊपर एक, तो आपका ग्राफ सीधा ऐसा रॉन्ग काट दिया जाएगा। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि जब आप ग्राफ बना रहे हो तो आपका पीक लेवल शिफ्ट होता जाना चाहिए लेफ्ट साइड में। ओके, नेक्स्ट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स ने क्या समझाया? वेन्स कनेक्टेड योर वेवलेंथ विद द टेम्परेचर and he said that your lambda maximum or wavelength of any of the particle of a black body is inversely proportional to temperature. उसने वेन ने एक theory निकाली in which he states that
द वेवलेंथ ऑफ अ एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, जो एमिसिव जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसका जो वेवलेंथ होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन निकालने के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड अ कांस्टेंट लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू b by t, where this b is known as b is known as वेन्स कांस्टेंट। b को वेन्स कांस्टेंट भी बोला जाता है, जिसका वैल्यू इज b is equals to 2.897 into 10 raised to minus 3 mk. What is mk? It is meter Kelvin. Okay. So what was the Wein's theory? What does the Wein's stated? He stated that the wavelength of the emissive power, जो energy emit हो रही है उसका wavelength is inversely proportional to temperature. Okay. The wavelength of the emissive power is inversely proportional to temperature. Okay. Now next is lambda max is inversely proportional to T. Lambda max is equals to B by T, where B is known as Wein's constant. और ये चीज हमने ऑलरेडी पीछे एक्सपेरिमेंट में देखी भी है कि it is inversely proportional to temperature. So lambda max is inversely proportional to temperature. So B का value is 2.897 into 10 raised to minus 3 मीटर केल्विन. मिली केल्विन नहीं है, ये मीटर केल्विन है. आप यहाँ पे मीटर केल्विन इंट्रोड्यूस करोगे B का वैल्यू तो आपको लैम्डा का जो यूनिट है वो मीटर में मिल जाएगा. वेन्स का मोस्टली यूज जो है वो सम सॉल्व करने के लिए किया जाता है. सन का, स्टार्स का, प्लैनेट्स का टेम्परेचर या वेवलेंथ जो एनर्जी वो स्टार्स एमिट कर रहे हैं उनका वेवलेंथ निकालने के लिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज किया जाता है. ओके. सो अगर आपको किसी तरीके से उस प्लैनेट का टेम्परेचर पता है तो आप उससे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उस एनर्जी जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है वो आप वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हेल्प से निकाल सकते हो. So these are mostly used for calculating the wavelength or temperature of your planet, stars, sun, planets, of course, everything. Next is, अब ये inversely temperature है, इसी बात से कुछ समझाती हूँ related to stars and sun. जो आपको पता होगा कि दो टाइप, एक्चुअली बहुत सारे टाइप के स्टार्स होते हैं, जिसमें से दो टाइप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. The first one is the white dwarf star. ये जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है. सिंस बट ये व्हाइट कलर के होते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज अ कलेक्शन. व्हाइट कलर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉन्ग फ्रीक्वेंसीज एंड व्हेन समथिंग इज अ कलेक्शन ऑफ लॉन्ग फ्रीक्वेंसी देन ऑफ कोर्स द वेवलेंथ देयर इज वेरी लो. करेक्ट. सो ये जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं ये मोस्टली इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है. सो अगर टेम्परेचर इज वेरी हाई तो उसका लैम्डा मैक्सिमम विल बी लो, ठीक है. सो इसलिए जो व्हाइट कलर वाले स्टार्स होते हैं या जो विबग्योर में व्हाइट की तरफ रेंज करने जाते हैं, यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट द विबग्योर सबसे हाई वेवलेंथ इज फॉर आर, उसके बाद लो होता जाता है. तो ये जैसे ओ वाई जी बी आई ये जो कलर्स है, ये जो कलर्स के स्टार्स होते हैं इन स्टार्स का वेवलेंथ मोस्टली बहुत छोटा होता है. और अगर इनका वेवलेंथ बहुत छोटा है तो ये जो स्टार्स होता है ना इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. तो इनका कलर देखकर ही डिसाइड कर लिया जाता है कि टेम्परेचर कितना हाई पॉसिबल है. अगर कोई भी स्टार व्हाइट कलर की तरफ या इन कलर्स की तरह दिखता है तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि उनका टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई. ओके. और जो रेड जायंट स्टार्स होते हैं वो बाकी के कलर्स के कंपेयर में थोड़े ठंडे होते हैं. सो इसलिए व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स का मोस्टली जो टेम्परेचर जाता है वो 10,000 केल्विन तक जाता है. और जो रेड स्टार्स होते हैं, रेड जायंट स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर 3,000 केल्विन तक ही रह जाता है. ओके. और आपका जो स्टार है इट इज अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार, इट इज व्हाइट इन कलर बिकॉज उसका टेम्परेचर इज वेरी हाई. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ व्हिच स्टेट्स दैट योर लैम्डा मैक्सिमम ऑफ अ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी is inversely proportional to temperature and it is used to calculate the wavelength and temperature of some substances. The last topic for KTG. Hope you are clear with Wein's displacement and spectral distribution. The last topic, हाँ ask. मैम फिर हम लोग ग्रीन स्टार ऑरेंज स्टार क्यों नहीं देख पाते? क्यों? There are red stars, orange stars. Red star तो red star is a Betelgeuse star. आप उसको नहीं देख पाते हो क्योंकि the stars are very very much far away from you. They are very very much far away from you. हमेशा सिर्फ व्हाइट स्टार ही दिखते हैं मोस्टली. नहीं, there are different stars. मैंने खुद रेड स्टार देखा है. ओरायन में आपका जो आर्म का स्टार होता है कभी ध्यान से देखना, इट इज रेड इन कलर. ग्रीन आपका या ग्रीन येलो मोस्टली ये जो कलर्स होते हैं ना ये कलर्स डेविएट हो जाते हैं बहुत जल्दी.
दे अच्छा गेट रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, तो आप मोस्टली नहीं देख पाते हो। ओके समझा? दिस इज द रीजन। हाँ मैम Okay, next is the last topic for your KTG, where your chapter gets over. The last topic is your Stephens Boltzmann law. Stephens Boltzmann law. Stephens Boltzmann law क्या स्टेट करता है? Stephens Boltzmann law ने आपके रेडिएंट पावर को, दैट इज रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को टेम्परेचर के साथ कनेक्ट करके रिलेशन निकाला है। आपके वेन्स ने वेवलेंथ और टेम्परेचर को कनेक्ट किया था, स्टीफन ने वेवलेंथ और रेडिएंट पावर वर्सेस टेम्परेचर को कनेक्ट किया है। एंड व्हाट इज द इक्वेशन? द रेट ऑफ एमिशन which is given by R of a radiant body, or you can say radiant energy per unit area per unit time, is directly proportional to T raised to 4, means fourth power of the temperature. He got a relation as that radiant energy per unit area per unit time is directly proportional to T raised to 4. Okay, this was the relation found by Stephen. ये पहला रिलेशन स्टीफन ने फाइंड किया था, बाद में बोल्ट्जमैन ने इसको थर्मोडायनेमिक के हेल्प से प्रूव किया था, इसीलिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोला जाता है इसको। So what does this states? That rate of emission of a radiant energy per unit area per unit time, or the power radiated per unit area, this can be written as power radiated per unit area as well. Okay, hope तुमने definitions पीछे देखे हैं, तो तुमको मुझे बार बार R क्या है वो समझाने की जरूरत नहीं है, but still it is power radiated per unit area. आपको पता है what is R? R is Q by AT, तो Q by T is your power. So R can also be defined as power radiated per unit area. Okay, so power radiated per unit area is directly proportional to fourth power of the temperature. Fourth power of the temperature से it was found proportional. Then proportionality sign हटाने के लिए you will put an equal to sign. R is equals to sigma T raised to 4, and this sigma is known as Stephen's constant. सिग्मा को स्टीफेंस कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, सिग्मा इज नोन एज स्टीफेंस। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ब्लैक बॉडी पे किए हुए हैं। स्टीफन ने, वेन्स ने, ये सारे एक्सपेरिमेंट ब्लैक बॉडी को कंसीडर करके किए गए हैं। बट दो इट इज एप्लीकेबल टू ब्लैक बॉडी, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू योर ऑर्डिनरी बॉडी एज वेल। इवन ऑर्डिनरी बॉडी में भी जब रेडिएंट पावर निकाला गया तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to 4 ओनली। ओके, सो where sigma is known as Stephen's constant, so it is the value of the sigma is given by 5.67 into 10 raised to minus 8 joules per meter square per second per Kelvin raised to 4. The unit of the Stephen's constant is joule per meter square per second per Kelvin raised to 4. चाहिए तो आप प्रूफ कर सकते हो ये कैसे आया है। ओके, एंड ऑफ कोर्स एक और तरीका है, जूल पर सेकेंड इज योर वाट, सो वाट per meter square per Kelvin raised to 4. This is also the unit for Stephen's constant. Now next is, this was about a black body जहां पर it was directly proportional to T raised to 4. R is equals to sigma T raised to 4. Okay, क्या हुआ अमन? Ask. Miss, joule per second. Joule per second. What is power? Power is work done per unit time, correct? And work is measured in joules. Yes. So joule per second is again a power. Clear? Yes, miss. Yes, yes. Okay. Now next way I'll go ahead. This was about, this equation is perfectly valid to perfect black body. But when you talk about your ordinary substances, then you have to introduce one more thing here. For ordinary substance, your equation becomes R is equals to E sigma T raised to 4. I'm not giving any proof because you do not have proof with you. तुमको प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ करने के लिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स लेवल पे जाके बात करना पड़ेगा, और वो आपको सिलेबस में नहीं है, वो सीधा एमएससी वाले लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है, सो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी योर फॉर्मूला इज गिवन बाय R is equals to E sigma T raised to 4, where E is known as emissivity और emissive power. आपको पता है E का वैल्यू इज गिवन बाय R by RB, करेक्ट?
सो E इज नोन एज एमिसिव पावर। तो ऑर्डिनरी सब्सटेंस के लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको E इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आपको उसने बोला नहीं है कि E का कोई वैल्यू नहीं दिया है अगर आपको, तो आप E को इग्नोर भी कर सकते हो। डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला एज R is equals to sigma T raised to 4। ठीक है, E और इन दोनों से कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, so if they have given the E value for ordinary substance, then you have to introduce in the formula R is equals to E sigma T raised to 4, and of course E का value range between 0 to 1 they will give you, and if they are not talking anything about E, then directly you will use the formula R is equals to sigma T raised to 4। ठीक है, now let's take a last experiment। Okay, let us take a perfectly black body। Hope you are clear with the Stephen's law। What Stephen's derived, that the energy radiated per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of the temperature। R is equals to sigma T raised to 4, where sigma is known as Stephen's constant, T raised to 4, T is the temperature here, time नहीं है ओम, temperature है। एक बात याद रखना, time सिर्फ एक ही जगह इंट्रोड्यूस हुआ है आपका, it is temperature। Okay, now next is, let's take the last theoretical part of your chapter। Let us consider a black body। एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर, आई एम कीपिंग द टेम्परेचर एज T। ओके, और एक सराउंडिंग में रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर T0 है। ठीक है, अगर मुझे पता करना है कि इफ आई से दैट द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, T इज ग्रेटर देन T0, तो मुझे पता करना है कि कितना एनर्जी जब ये एमिट कर रहा है, तो हाउ मच एनर्जी इट लॉस्ट ड्यूरिंग रेडिएशन। ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर हाई है तो ये रेडिएट करेगा। So how you can simplify? You know that energy radiated per unit area per unit time R is equals to sigma T raised to 4 for black body। For surrounding, ये जो emit करेगा surrounding वही absorb करेगा। So this is energy radiated per unit area per unit time, means energy emitted। Now whatever energy it is emitting, that will be absorbed by your surrounding। So energy absorbed per unit area per unit time is given by sigma T0 raised to 4। मतलब कुछ अमाउंट इसमें से क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स परफेक्टली ये पूरा का पूरा जितना एमिट करेगा सराउंडिंग पूरा का पूरा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, देयर विल बी सम लॉस। सो लॉस इन एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय जितना उसने रेडिएट किया है। अगर लॉस नहीं है तो जितना रेडिएट किया है उतना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, करेक्ट। बट इफ देयर इज अ लॉस तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली व्हाट यू विल डू, ये ज्यादा होगा एमिशन, एब्जॉर्प्शन अगर सिंस लॉस हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। सो सिग्मा T raised to 4 माइनस सिग्मा T raised to 4 माइनस सिग्मा T0 raised to 4, सिग्मा कॉमन करोगे T raised to 4 माइनस T0 raised to 4। सो जो भी सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट आएगा दैट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द perfectly black body by radiating out the energy per unit area per unit time। Are you clear? If you have any doubt please ask till here। तीनों जो आज मैंने समझाया RE minus RA किया ना मैम? हाँ, RE minus RA किया है। Is there any doubt? Please ask। कुछ डाउट है तो पूछो। मैम ऊपर बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट का यूज क्या था एक्चुअली स्टीफन को? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यहाँ पे जो नाम इंट्रोड्यूस किया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ऐसा? हाँ, बोल्ट्जमैन ने यही थियरी को आगे थर्मोडायनेमिक के एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि सच में योर रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, और यू कैन सिंपली डिफाइन रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is directly proportional to T raised to 4। It was proved by Boltzmann। Okay। So when it was proved by Boltzmann तो दोनों को पेटेंट देना जरूरी था, इसलिए नाम दिया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। Sure। Yes। Anything else? If you have any doubt till here in the chapter, please ask, because here your chapter gets over। First आप क्या करने वाले हो, सारे सम्स जो भी बचे हुए हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सम्स करवा दिए हैं, जो भी सम्स बचे हुए हैं वो आप खुद से ट्राई करोगे। अगर आपको नहीं आता है तो वो सारे सम्स जो भी आपको नहीं आएंगे वो मैं कल डिस्कस करूंगी। So here your chapter gets over। हेलो मिस। बोलो। मिस वो पूरे लेसन का एक साथ PDF सेंड करो ना। That is not possible। क्योंकि मिस मैं अभी मोबाइल फॉर्मेट किया, मोबाइल चल नहीं रहा था ठीक से।
That I cannot do anything. You need to ask to your friend. Okay. मैम आपने बोला बोल्ट्जमैन ने स्टीफन का ये सब यूज करके किया, तो इधर क्यों बोल्ट्जमैन